A very good evening, the esteemed speaker for today's session, Om Shanti to BK Chandrika Didi, CA Dr. Falguni Bhatt, Chairman Ahmedabad Branch CA Harit Dariwal, senior members, and my dear friends. A very good evening to one and all, and Om Shanti from Secretary of Ahmedabad Branch of ICAI. Let's begin the session with ICAI motto. Request Sejad Bhai to play ICAI motto, and I request each one of you to put their hand on their heart for ICAI motto. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. Thank you, Shehzad Bhai. There has been a deepening mental health fallout among members in the second wave of the pandemic. Feeling of stress, anxiety, pre-COVID worries, post-COVID worries, and depression calls for help and support. So we are glad that Ahmedabad branch of ICAI has organized this session where our happiness is lost. We are grateful to CA Dr. Falguni Ben for arranging this session for us, and also BK Chandrika Didi for sparing her valuable time with us. A positive mental well-being is what makes a country stronger, helps a person to be more immune, and enhances the overall harmony of the community. So let's nurture our minds with positivity with today's session and tomorrow's session on finding our lost happiness. With these words, I welcome you all once again. I request now the chairman of Ahmedabad branch to give opening remarks. Thank you, Anjali Ben. Very respected Chandrika Didi, Om Shanti, who has joined us today for the session. CA Falguni, very good evening, ma'am. CA Anjali Choksi, Secretary of the branch. Very happy to see Rajesh Ji Kapoor, who is the chairman of Ludhiana branch, who has joined us today. Welcome, sir. And all the members who have joined today. I think this is the topic which I think is the need of the hour. You know, we all are talking about our sessions on technical sessions on audit, taxation, but I think it is very important for us to find our real happiness. And with this concept, when I asked Falguni Ben to, we want to do something on this this sort, and she was very, proactive in the way she designed the entire 2 days sessions. I'm very happy with that, and I'm sure all the members would be having a great enriching sessions on today and as well as tomorrow. I would just share a slide. I think Shehzad, if you can just share the screen of what the activities are there at the Ahmedabad branch, and especially this is for the COVID related things, because I don't want to talk anything about the sessions, technical sessions. This is what we are doing for our members, and I think for everyone who is around us. One is on the vaccination drive. We have had more than 8 drives so far, with more than 1,700 persons are vaccinated, and we are soon going to come soon if we have some permission from the state government. From this food kit, again, that facility is still on. Though, even for non-members, those who are requiring the food kit distribution, we give them at the doorstep. Happy Fields, a very, very interesting initiative that we launched last night. Again, Anjali Ben was founder in designing this. So it's a wonderful initiative wherein, we have doctors on board, psychiatrists on board. We have, very good technical persons on board who are going to help members. It's a wellness program. So where everything will be there through an email ID. We have to communicate to the doctors. Confidentiality will be maintained,
And anyone, like even if you have any worries relating to your, like, you know, some mood issues, you have child related issues, or you have some impulsivity issues, or whatever you have, I think maybe if you just want to feel good, you can, you know, email it to email at the designated ID, and the doctors will take it forward. Then we have a cab service which is still on. So any COVID patient, COVID positive person, if he wants to travel to a hospital for some reports, wants to go to a doctor for some consultancy, they can call the cab service, and that is available for them. Medicines at your doorstep, again, this is still on. We basically have tied up with a few pharmacists, and they will basically will deliver the medicines at your doorstep at 20% discount. And for generic medicines, it's 90% discount. For plasma donation and blood donation, and this is what we are going to stress more now. Blood donation drive is still on. If you want to donate blood, the Red Cross van will be coming near your house, and you can donate it from your doorstep. Plasma donation drive is very important. I think people receive plasma, but it's very important to donate as well. Hence, we are doing it on a very large scale. In case you fulfill all the conditions of donating plasma, please come forward and donate plasma. It's the need of the hour. We have had a lot of expert talk sessions on the COVID related things from the doctors. We had special sessions for our children also, child COVID care. We had a break the chain appeal, wherein we appeal to all the members, professional members, that 3 days break the chain, don't go to offices, and make your staff, make sure that your staff remains safe at home. And today we are having a very, very interesting session on finding our lost happiness. I think this is something which I said again in the beginning is the need of the hour. And I'm very, very happy that we have 2 wonderful days to know more about the lost happiness, starting today with an excellent session of Chandrika Didi. Thank you so much again, ma'am, for coming today. Or we all are very grateful to Falguni Ben, and especially to Chandrika Didi today for coming and enlightening us. Thank you once again. Thank you, Chairman, for your guidance and updates. I'm sure under your dynamic leadership, Ahmedabad branch of ICAI will not only have 10 points for the COVID care initiatives, it will keep on moving like Movement 73. With these words, I would now request CA Dr. Falguni ma'am to take the session ahead. Om Shanti. Thank you so much, Chairman Harid Bhai and lovely sister Anjali. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और भगवान का शुक्रिया कि हम सब अभी इकट्ठे हुए हैं एक बहुत अच्छे कार्य के लिए, क्योंकि हमारे बीच में ऐसी आत्मा जो है, अनुभवी आत्मा और बहुत अच्छे मैनेजमेंट के भी अनुभवी आत्मा है ना। तो हमारे पास डिग्री तो है, लेकिन साथ साथ में जो ऐसी अनुभवी आत्मा है, तो हम कह सकते हैं कि ये ब्लिसफुल इवेंट है ना। तो बहुत अच्छी एक मोमेंट रही है, और स्पेशली एक उनका इंट्रोडक्शन करूँ उससे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन भी देती हूँ अहमदाबाद मैनेजमेंट टीम का, कि जिन्होंने बहुत अच्छे, जैसे यंगेस्ट टीम मुझे तो लग रही है अभी, कि पूरे अभी ऑल ओवर इंडिया का जो कैंपेन लिया है फिट इंडिया, उसमें न ओनली फिट इंडिया मूवमेंट, लेकिन ऐसा लगता है कि एक पूरा एक चैरिटी जैसे हो जाता है ना। हम यहाँ से तन मन धन से तो करते हैं, लेकिन जब विचारों की चैरिटी होती है, हम अपने आप में जैसे समृद्ध होते हैं, तभी हम दूसरों को वो वाइब्रेशन दे सकते हैं। तो अभी जितना मेरा एक कोऑर्डिनेशन रहा, कम्युनिकेशन रहा अंजलि बेन से, हरित भाई से, सुनील भाई से, बिशन भाई से, तो मुझे एक लगता है कि जब सब साथ में होते हैं ना, तो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन जाती है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मुझे अभी याद आ रहा है 11 ब्रांच से शुरू हुआ था हमारा, ये 4th वीक चल रहा है फिट इंडिया, राइट अंजलि में, और अभी 59 क्रॉस हो रहा है। सो इट्स रियली वेरी वंडरफुल इवेंट। और मैंने तो हरित भाई को बोला है कि 73 भी क्रॉस होने वाला है, लेकिन अभी लगता है 100 क्रॉस हो जाएगा। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं कहना चाहूंगी कि भले हम एक दूसरे को, मतलब आप देख सकते हैं हमको, लेकिन हम आपको नहीं देख सकते, लेकिन आप अपना रेज हैंड करके जो अभी वहाँ चैट बॉक्स में है ना, आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम कम्युनिकेट रहेंगे। साथ में दीदी का जो इंट्रोडक्शन उनके बारे में बताऊं, तो वहां से शुरुआत करना मुझे अच्छा लगेगा कि हमारी जो जर्नी है, स्पेशली मेरी और मेरी फैमिली की, 2007 में हमने ईश्वर क्या है, हम क्या है, हम आत्मा क्या है, वो मतलब मैं और मेरा कौन,
ऐसा समझा, वो जर्नी का जो एक बीज डाला वो ये चंद्रिका दीदी ने डाला है। और सच में जब दीदी से मिलते हैं तो लगता है कि माँ का प्यार साथ साथ में नॉलेज जो है वो नॉलेज से तो बिल्कुल भरपूर है। हम जितना भी उनके पास से नॉलेज ले, लेकिन एक माँ का जब प्यार आ जाता है ना तो नॉलेज लेना बहुत इजी हो जाता है ना। तो ऐसी दीदी ने हमको पाला, नॉलेज दिया और इस जर्नी में उंगली पकड़ लिया। तो ऐसी दीदी को जब आज ये स्टेज पर मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो मुझे बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं कि लव यू शिव बाबा, जो निराकार परम पिता परमात्मा है, जो इस आत्मा को इतना सौभाग्यशाली बनाया। तो सच में मैं बाबा को, शिव बाबा को, निराकार परमात्मा गॉड ऑलमाइटी जो है उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो उस तरह से वो हमारी अलौकिक माँ भी बन गई हैं। तो ऐसी माँ के बारे में अभी मैं आप सबसे थोड़ी रूबरात कराना चाहूंगी। जो हमारी प्यारी मीठी चंद्रिका दीदी हैं, उन्होंने उनका लौकिक जन्म 1947 में हुआ पेटलाद में, यानी कि अभी 75 इयर्स की हमारी दादी जैसी वो मीठी प्यारी दीदी है, लेकिन यंगेस्ट दीदी है ऐसा कह सकते हैं। जब वो अभी हमारे साथ कुछ शेयरिंग करेंगे ना तो लगेगा कि सच में बस हम सुनते ही रहे। 1967 यानी कि 20 साल की उम्र में ये जो संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उनके जो फाउंडेशन में दादा लेखराज थे, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई और स्पिरिचुअल जर्नी में दीदी जी ने अपना जीवन समर्पित किया। तो 1967 से वो अपना जीवन समर्पित कर रही है फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। साथ साथ में और आगे बोलो तो दीदी जी ने बहुत रिसर्चेज में और इन्वेंशन में एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम किया है। उसमें शुरू के दिन में 3 days राजयोग की वर्कशॉप शिविर होती थी, तो वो भी उन्होंने डिजाइन किया है। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज भी कराया है और पूरा एक जैसे डिजाइन करना होता है ना, तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छे जो पूरे विश्व में वो चल रहा है, तो ऐसे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज का भी डिजाइन किया है। और साथ साथ में और बोलो तो सेमिनार तो इंटरनेशनल होता ही रहता है उनका, उसमें स्पेशली उन्होंने यूके, यूएसए, यूएई एंड अफ्रीकन कंट्रीज में जाके विजिट करके सेवाएं दी है। और अभी वेबिनार्स में आप देखेंगे तो बीके महादेव नगर लिखेंगे यूट्यूब में, बहुत सारा सेमिनार्स आपको मिलेगा। तो वहाँ तो अभी वेबिनार 1 साल में तो उन्होंने पूरी दुनिया में अपना सेवाएं दे रहे हैं, है ना। तो ऐसी दीदी हमारे बीच में है। और एक इंट्रोडक्शन बोलूं तो बहुत लंबा है, लेकिन उसमें से मैं थोड़ा ही ले रही हूँ। तो 1985 में नेशनल कोऑर्डिनेटर यूथ विंग की वो अपॉइंट हुई और वहां से उनकी सेवा यूथ विंग के लिए सेवा शुरू हो गई। 1985 के बाद अभी 2018 में वो वाइस चेयरपर्सन की तौर पर सेवाएं दे रही है। देखिए यूथ विंग की वाइस चेयरपर्सन हमारे साथ है। अगर उस तरीके से एक सीए माइंड जो है ना वो काम करेगा तो समझ में आएगा कि ऐसी दीदी जी हमारे बीच में यूथ को मोटिवेशन कर रही है, यूथ को मोटिवेट कर रही है, प्रेरणा दे रही है ना। और बहुत सारा उन्होंने विश्व कैंपेन कह सकते हैं, बहुत सारा ऐसा सेवाएं दी है। उनके बारे में और कहें तो हमारे गवर्नर ऑफ गुजरात, हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ गुजरात, 2002 में श्री सुंदर सिंह जी भंडारी जी थे, उनके हस्तक से नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन यूथ थ्रू स्पिरिचुअल वे। ये बहुत एक मजाक की बात है कि देखिए एक यूथ के लिए स्पिरिचुअल वे क्या है, उसमें उन्होंने इतनी सेवाएं दी कि वो अवार्ड, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। साथ में 2001 एंड 2004 की थोड़ी बात याद करें तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस प्रोजेक्ट में उन्होंने 8 कैंप्स चलाए थे, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स। 8 नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया था, जिसका अम्ब्रेला थीम थी रीबिल्डिंग यूथ टू रीबिल्ड नेशन। यूथ हमारी वेल्थ है, तो उन्होंने कितना अच्छा एक ऑर्गेनाइज किया था 2001 में। और ऐसे ही 5 नेशनल इंटीग्रेशन कैंपस उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अंडर द अम्ब्रेला थीम स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत 2004 में। थोड़ा और आगे देखे तो 2006 में उन्होंने
ऑल इंडिया की करीबन 33 सिटीज को कवर किया और पद यात्रा का भी संचालन किया। 2007 में ये बहुत अच्छी एक सोचने जैसी बात है। टच द लाइट करके एक प्रोग्राम, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को वो टच द लाइट का प्रोजेक्ट बहुत उपयोगी हुआ और 2000 स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। ये जो है ना एजुकेशन की बात है, तभी मुझे लगता है कि हम डिग्री लेते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, चाहे एमबीए करें, डॉक्टर बने, सीए बने, प्रोफेशन इज प्रोफेशन, बट उसमें अगर मोरालिटी का एक थोड़ा सा मूवमेंट अगर मदद के रूप में मिल जाता है, ऐसा एक सब्जेक्ट अगर हमारा मिल जाता है तो बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है स्टूडेंट्स को। यहाँ एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, स्टूडेंट्स काउंसलर के तौर पर मैं सेवाएं दे रही हूँ। स्पेशली अपने सीए स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनको और कुछ ज्यादा नहीं कराती, जो 3, 4, 5 ट्रायल भी हो जाती है उनको कहती हूँ आप है ना ये इसको पहचाने और इसको पहचाने, मैं शक्ति हूँ इस शरीर को चलाने वाली और कैसे परमात्मा से लिंक करना है। और वो स्टूडेंट्स, मुझे खुशी है कि भगवान ने मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो स्टूडेंट्स पास होकर अपनी अच्छे से अभी सेट हो गए हैं। तो ये जो दीदी का टच द लाइट प्रोग्राम है वो भी बहुत अभी हेल्पफुल हो रहा है। 2013 में उन्होंने शांति दूत यूथ साइकिल यात्रा, उसका भी संचालन किया, जो ऑल ओवर इंडिया में छोटे छोटे गांव से होकर 96 प्लेसेस से गुजरा। और अभी के बारे में बताएं तो लॉकडाउन से पहले 2.5 साल एक ऑल इंडिया एग्जीबिशन बस कैंपेन चला था। वो बस कैंपेन ऐसा है कि उसमें सारा ज्ञान आ जाता है और मेडिटेशन कैसे हम कर सके उसके बारे में बताया जाता है। और वो ऑल इंडिया में वो बस घूमती है और उसके साथ सेवादारी सेवाएं देते हैं। तो ये लॉकडाउन से पहले 2.5 साल तक ये चला। लॉकडाउन की वजह से मूवमेंट अभी बाद में होगी। तो ऐसे दीदी जो अभी अहमदाबाद में अपने इंस्टीट्यूट के बाजू में ही एक भवन है, महादेव नगर ब्रह्मा कुमारीज का, वहाँ वो डायरेक्टर भी है और बहुत अच्छे से लोगों की सेवाएं भी चल रही है। वो दीदी जी ने 33 राजयोग सेंटर्स भी संभाल रही हैं। चंद्रिका दीदी जी अभी शी इज सक्सेसफुली मैनेजिंग 33 राजयोग सेंटर्स एंड सब सेंटर्स इन अहमदाबाद महादेव नगर सब जोन, यानी कि सब जोन इंचार्ज भी है। तो ऐसी दीदी जी का मैं फुल से स्वागत करना चाहूंगी। दीदी जी आप तो हम सब की माँ स्वरूप है ना, तो आप सबका सबके साथ में आपका अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति दीदी जी, बस हम आप ही को सुनेंगे। ओम शांति। थैंक यू अहमदाबाद ब्रांच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनाई देता है? सुन रहे हैं? हाँ जी सुनाई देता है दीदी। हमारे युवा चेयरमैन श्री हरिद भाई, मीठी अंजलि बहन जी और हमारी सेवा साथी फाल्गुनी बहन, और आज इस कार्यक्रम में भारत भर से जुड़े हुए हमारे सीए भाई बहने, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं आपको नहीं देख सकती हूँ, मैं आप सबको देख सकती हूँ और मैं आप सबसे आज बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मुझे सबसे पहली खुशी ये हुई है कि जब सीए भाई बहने कोई निशान बना ले तो उसमें तो कोई कमी रहेगी नहीं। जब सुख की बात के ऊपर आप आए हैं तो मुझे लगता है इस दुख की दुनिया को आप भगा करके ही रहेंगे। चाहे
किसी भी रास्ते से, मार या प्यार, लेकिन ये काम आप जरूर करेंगे। तो मुझे बहुत आशा बनी है। बहुत अच्छा विषय है, दिल को लुभाने वाला विषय है, मास्टर की टू हैप्पीनेस। ये चाबी मिल जाए तो किसको पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये चाबी हाथ में मिलने के पहले हमें जो कुछ करना है उसी पर आगे कदम बढ़ाएंगे। लेकिन सेशन के प्रारंभ में आप लोगों ने जो विधि बनाई है, रियली आई बहुत मुझे अच्छा लगा। इसका बेस ही बहुत आध्यात्मिक है, एकदम ही मन को प्रसन्न करने वाला है। तो इसीलिए मैं इससे बहुत ज्यादा भावुक हुई, बहुत खुश हुई। देखो मेरे भाई बहनों, मानव जीवन के दो पहलू, तन मन। मन आत्मा से संबंध रखता है और तन। अब शरीर का भी स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए और मन की खुशी सुख हमेशा रहना चाहिए। जीवन तो इसीलिए है। आजकल बहुत इजीली ये शब्द हम सभी के मुख से सुनते हैं, फियर, हरी, वरी, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। और केवल ये शब्द सुनते नहीं हैं, उसमें लोग डूबे हुए हैं, काफी मात्रा तक इन्वॉल्व हो गए हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं। तो ये जो वर्तमान परिस्थिति है, इस परिस्थिति का रूट कॉज क्या है, ये हमको ढूंढना होगा। देखो, जब तक किसी बात का डायग्नोस ठीक से नहीं होता है तो निदान भी ठीक नहीं हो पाता है। और वर्तमान बीमारी ने बहुत सारे लेसन मानव जाति को सिखा दिए हैं। यू नो, आज मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है, ये हालत हो गई है। और हर कोई तनाव में है, दुख में है। तो आज हमें दो बातों पर सोचने की बात है। जैसे देखो, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा स्वास्थ्य परफेक्ट होना चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हमें हेल्थ का नॉलेज है, इवन छोटे बच्चे को भी नॉलेज है, जिसके कारण अगर शरीर में कोई भी तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, या एसिडिटी हुई, कुछ भी हुआ, हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दवाई लेते हैं, बीमारी को ठीक करने के पीछे लगे रहते हैं। और जब तक बीमारी ठीक नहीं होती है, हमारा प्रयास चालू रहता है। तो शरीर के बारे में तो हम सभी बहुत जागृत हैं। और आज तो देखो, शरीर के पीछे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जान बचाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। चाहे वो सरकार है, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं। क्यों?
हेल्थ फर्स्ट। तो हेल्थ के लिए हम जागृत हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि ये शरीर में जो आत्मा है, अगर वो आत्मा चली जाए, निकल जाए, तो वो शरीर के अस्तित्व से कोई फायदा नहीं रहता है। फिर तो राम बोलो भाई राम हो ही जाता है। कितने भी प्रिय व्यक्ति हो, कितनी भी ऊंची पोजीशन वाली व्यक्ति हो, कितनी भी धनवान व्यक्ति हो, कितनी भी सुंदर व्यक्ति हो, लेकिन उन्हें जलाना ही पड़ता है। लेकिन आप हम सभी 24 घंटा केवल शरीर का ही ख्याल रखते हैं। अरे मैं तो कहूंगी शरीर का ख्याल भी जितना रखना चाहिए इतना नहीं रखते हैं, और शरीर को चलाने वाली आत्मा का ख्याल तो रखते ही नहीं। इस शरीर में कोई आत्मा है जिसका हमें कॉन्शियस रखना है, ऐसा तो शायद कोई सोचते होंगे। इसीलिए पहले तो जो गलती है उसे सुधारनी पड़ेगी। जहां से दुख एंटर हुआ है, जहां से अशांति एंटर हुई है, जहां से सारे तनाव एंटर हुए हैं, उस मानसिकता को समझना पड़ेगा। हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमारी चेतना के आधार पर सारा कारोबार चल रहा है। लेकिन उस चैतन्य को भी हमने एकदम जड़ कर दिया है। ये आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बहुत गहरी है, लेकिन आज हमारे डे टू डे लाइफ में हम सभी मिल करके जो मनुष्य का शत्रु है दुख, और दुखों के पहाड़ बन गए हैं, उन पहाड़ों को खत्म करना चाहते हैं। मेरी बात मैं थोड़ा धीरे से बोलूंगी, आपको नोट करने की इच्छा हो तो नोट करना, नहीं तो फिर मेरे से पूछेंगे कि दीदी हमें वो बात सुनाइए। 5 बातें जिसको हम अपने जीवन से निकालते हैं तो काफी हद तक हमारा दुख खत्म हो जाएगा। पहले तो ये दुखों भरे मन को, ये दुखों से भरी हुई बुद्धि के बोझ को रिलैक्स करना पड़ेगा। पहली बात, हमारे जीवन में हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। घर में वाइफ, बच्चे, माता पिता, सर्वेंट, उस सभी से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इनको ऐसे ही करना चाहिए, उनको वैसे ही करना चाहिए, उनका व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, इसको मेरी बात माननी ही चाहिए, इसको मेरे कहने पर चलना ही चाहिए। ऐसी हमारी छोटी बड़ी मीडियम एक्सपेक्टेशन होती है। अब ये आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो, ये हमेशा संभव नहीं हो सकता है,
क्यों ये संभव नहीं हो सकता है? पहले तो हम भी सबकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते हैं, तो हमारी अपेक्षाएं सभी पूर्ण करे, ये कैसे पॉसिबल होगा? समझो, आज मुझे आपके लिए बहुत प्यार है, मैं चाहती भी हूं कि मैं आपकी इच्छा को पूरी करूं, लेकिन मुझे सरकमस्टेंसेस अलाउ नहीं कर रहा है, या मेरी कैपेसिटी नहीं है, या मैं चाहते हुए भी मेरी बहुत सारी लिमिटेशंस है, जिसके कारण मैं आपकी अपेक्षा पूरी नहीं कर सकती हूँ। हर एक के साथ कुछ ऐसा होता है। तो अगर हमें तनाव को कम करना है तो एक प्रिंसिपल याद रखिए, नो एक्सपेक्टेशन। किसी से भी, न घर में, न ऑफिस में, न पड़ोस में, न मित्र से, किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। आपको ये बात थोड़ी भारी लगेगी कि ये तो कैसे संभव हो सकता है, लेकिन मैं आपको उसकी एक युक्ति बताती हूँ। एक्सपेक्टेशन की जगह पर आप एक्सेप्टेंस शब्द ले लो। जो व्यक्ति है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो कुछ हो रहा है, यू एक्सेप्ट इट एज इट इज। आप उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, और स्वयं की तरफ से कोई अपेक्षा नहीं रखो। एक्सेप्ट क्यों करना है? क्योंकि देखो, ये मैं एक आपको मिसाल बताती हूँ। हमारा एक्सेप्टेंस पावर हम कहाँ यूज करते हैं और खुश होते हैं? आप एक 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं। जब फिल्म देखने आप बैठे और फिल्म देखना शुरू किया, और शुरू से ही आपका एक्सेप्टेंस शुरू हो गया। बस आप देखते ही रहते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, आप देखते ही रहते हैं और उस बातों को स्वीकार करते हैं। 3 घंटे की फिल्म देखने के बीच में अगर कोई इंटरफियर करने आते हैं तो आप कहते प्लीज बाद में। क्यों? कि आपका एक्सेप्टेंस 100% उस बात के लिए है कि मुझे कंप्लीटली उसको अच्छी तरह से देखना है, समझना है, सुनना है, एंजॉय करना है। और फिर 3 घंटे के बाद वो फिल्म देखकर आप अपना एक्सप्रेशन देते हो, बहुत अच्छी फिल्म थी, क्या बताए, वंडरफुल, इज इट? ऐसे होता है। अगर आप 3 घंटे की फिल्म को एक्सेप्टेंस की मानसिकता से देख करके आनंद ले सकते हो, तो ये जीवन की फिल्म को आप देखो with the mentality of acceptance. And I am sure to say कि आपकी मानसिकता बदलने से जो सिचुएशन आपको पहले दुखी करती थी, जो बातें आपको पहले दुखी करती थी, आप में इतना बदलाव हो जाएगा कि आप भी सुखी हो जाएंगे और आपके संग से और भी सुखी हो जाएंगे। तो पहली बात आप सभी एक्सेप्ट करते हैं ने, नो एक्सपेक्टेशन। जीवन से बात को चौकड़ी लगा दीजिए। दूसरी बात है,
हम अपने लाइफ के अंदर, हमारे आसपास इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, हमें भाग्य से माँ बाप मिला, भाई बहन मिले, हम पति पत्नी बने, हमारे कितने अच्छे बच्चे हैं, हमारा कितना अच्छा स्टेटस है, सब कुछ होते हुए एक मानसिकता ये है कि हमें दूसरों की कमी ही दिखाई पड़ती है, और वो दूसरों की कमी देख करके उसको माइंड में ऐसे सेट कर लेते हैं कि ये तो इसकी गलती है, ये तो उसकी कमी है, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही वैसा। और हमारे डे टू डे लाइफ में, चाहे पर्सनल बातचीत में, चाहे 5, 10, 25 की सभा के बीच में, हमें ऐसा बोलने में शर्म भी नहीं आता है और हम सहज रीति बोल देते, जाने दो इसकी तो बात करने जैसी नहीं है, ये तो बहुत गुस्से वाला है, इनकी आदतें तो बहुत खराब है। उस व्यक्ति के लिए आप मुझे पूछो ही नहीं, पता नहीं कैसी कैसी कमेंट्स करते हैं, टू ब्लेम, दूसरों को ब्लेम करना। और यही कारण बढ़ता है कि आज आप ब्लेम कर रहे हो, कल वो आपको ब्लेम करने के लिए 10 टाइम्स अपने में ताकत भर रहे हैं कि मैं भी दिखा दूंगा, अभी मैं भी कोई कम नहीं। तो दूसरा दुख का रूट है ब्लेम। करना क्या चाहिए? हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कुदरत की क्रिएशन के हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता है, और उस विशेषता को देखते हुए हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आज आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो आपको कितनी खुशी होती है, आपको कितना कंफर्ट। ठीक उसी प्रकार अगर आप सामने वाले को अप्रिशिएट करेंगे, उनको भी सुख मिलेगा, आपको भी सुख मिलेगा, उनको भी कंफर्ट मिलेगा, आपको भी कंफर्ट मिलेगा। तो दूसरी बात, नॉट टू ब्लेम बट टू अप्रिशिएट। फिर तीसरी बात है कि आजकल लोग अपने को बहुत क्लेवर समझते हैं, और क्लेवर कौन सी मानसिकता के आधार पर? नेगेटिविटी की मानसिकता के आधार पर। हर कोई बात में सोचने का तरीका क्या है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो, कोई अच्छा काम करने के लिए कोई सोच रहे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मदद नहीं मिली तो, अगर सफल नहीं हुए तो, अगर वो एग्जाम में पास नहीं हुआ तो। अरे सोचने का तरीका नकारात्मक थोड़ी होना चाहिए। अपने लिए भी नेगेटिव, औरों के लिए भी नेगेटिव, भविष्य के लिए भी नेगेटिव। तो तीसरा, नो नेगेटिविटी। ये नेगेटिविटी से क्या होता है? डाउट्स पैदा होते हैं, शंका उत्पन्न होती है, और ये शंका पॉइजन है। पॉइजन क्या करता वो तो मालूम है, पॉइजन क्या करता वो तो हमें मालूम है। ये जो नेगेटिविटी और शंका का पॉइजन सुख को खत्म कर देता है, खुशी को खत्म कर देता है।
वास्तव में हमारा व्यक्तित्व सकारात्मक है। कुदरत ने हमें सकारात्मक ही बनाया है। तो देखने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका, वास्तव में जो वो पहले के जमाने में हमारे दादा दादी हुआ करते थे, माँ बाप हुआ करते थे, हम किसी काम के लिए जाते थे, चरण स्पर्श करते थे और वो मुख से बोल देते थे, बेटा सफल हो, बेटा तेरा कल्याण हो, बेटा तेरा भला हो, और हो जाता था। मैं एक सच्चा बनी हुई हकीकत घटना सुनाना चाहती हूँ कि ये हमारे मुख से निकले हुए नेगेटिव बोल या संशय के बोल क्या कर सकते हैं। ये एक बार एक युवा भाई 18-20 साल का, वो घर से बाहर जा रहा था, तो अपनी माँ को कहा कि माँ मैं अभी बाहर जाता हूँ। माँ ने पूछा कैसे जा रहे हो? बोला स्कूटर लेके जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा देखना, ध्यान से जाना, कहा एक्सीडेंट ना हो जाए। वो गया, रोड क्रॉस किया, बाहर ज्यादा गया ही नहीं, आधा फरलंग रोड क्रॉस किया, एक्सीडेंट हुआ, काफी इंजरी हुई, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा। तभी भी उसकी माँ उसको कहती है, बेटा मैंने तेरे को कहा था ने कि ध्यान रखना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो युवान बहुत समझदार था, कुछ नहीं बोला। वो हमारी संस्था में आता था। 2 दिन के बाद उसने माँ को कहा, माँ जब तेरे को मालूम है कि जो तू बोले वो हो जाता है, तेरे बोल में इतनी सत्यता है, अगर तुम नहीं बोलती न तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। और ये बात सही है। हम जो बोलते हैं वही होता है, हम जो सोचते हैं वही होता है। ये बिल्कुल कुदरत की सत्यता है। इसीलिए नकारात्मक सोचना, नकारात्मक बोलना, नकारात्मक कुछ कहना, उसको अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया जाए। तो तीसरा, नो नेगेटिविटी। चौथा, नॉट टू रिएक्ट। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट हो जाते हैं। गुस्सा आ जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस बना लेंगे, थोड़ा एक दूसरे के लिए गुसपुस करते रहेंगे, गोसिप्स करते रहेंगे। ये रिएक्ट होना, ये हमारा व्यक्तित्व नहीं है वास्तव में। ये तो आपने अपना रिमोट किसी को दे दिया ऐसा माना जाएगा कि कोई आपको गुस्सा कराए तो आप गुस्से हो जाओ, कोई आपको मुस्कुराए तो आप मुस्कुराओ, कोई आपको इज्जत दे तो आप इज्जत दो, न दे तो न दो। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि फिल्म के अंदर इम्पोर्टेंस किसका होता है? हीरो एक्टर का होता है ना। हीरो एक्टर किसको कहा जाता है? हीरो एक्टर वो कभी रिएक्ट नहीं होता है, वो अपनी पोजीशन में रह करके अपना पार्ट प्ले करता है।
और वो उस अदा से काम करता है कि लोग सब उसको पसंद करते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी चैलेंजेस आती हैं, वो रिएक्ट नहीं होता है। अगर हमें अपना अच्छा व्यक्तित्व बनाना है तो हमें रिएक्ट नहीं होना चाहिए, हमें अपने स्वमान में रहना चाहिए। हमें अपने आत्मा के जो श्रेष्ठ मूल्य है उन मूल्यों में स्थित रहना चाहिए। तो ध्यान रखना है नॉट टू रिएक्ट। और पांचवी बात है नॉट टू रिजेक्ट। हम बहुत कुछ रिजेक्ट करते हैं। मुझे इस व्यक्ति के साथ मेल नहीं बनेगा, मुझे इससे बात करना अच्छा नहीं लगता है, मैं इनके साथ काम नहीं करूंगी, मेरे को ये खाना पसंद नहीं है, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, मेरे को ये ड्रेस पसंद नहीं है। अरे आप सबको रिजेक्ट करते जाएंगे। व्यक्ति को रिजेक्ट किया, खाने को रिजेक्ट किया, काम को रिजेक्ट किया, तो क्या हो जाएगा? आप भी तो रिजेक्ट हो जाएंगे। और रिजेक्ट होने से कभी सुख मिल सकता है? अगर सब लोग आपको रिजेक्ट करे, आपको सुख नहीं मिलेगा, आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो ये बातें हमारे प्रेजेंट लाइफ में बहुत ऑर्डिनरीली और बहुत सहजता से बिहेवियर में है। और ये एक एक बातें ऐसी हैं जो हमारे खुश सुख को और दूसरों के सुख को, हमारी खुशी को, दूसरों की खुशी को खत्म करती है। तो ये 5 बातें अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। एक बार फिर से अपने से ये प्रण करें, हम प्रवचन सुनने नहीं इकट्ठे हुए हैं, हम तो दुखों के पहाड़ को उठा के फेंक देंगे और सुखों की दुनिया को उस धरती पर ले आएंगे। तो पक्का? हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं ने, वो तो बहुत क्लेवर होते हैं और वो कभी नुकसान का धंधा तो करेंगे ही नहीं, बेनिफिट की ओर ही जाएंगे। तो आज से ये 5 बातें स्वाहा याद तो रह गई होंगी। फिर से एक बार सुना सकती हूँ। सबसे पहले आप सुनाना चाहेंगे? आप में से कोई सुनाना चाहेंगे 5 बातें? फाल्गुनी बहन सुना सकते क्या? जी दीदी, जी सुनाइए, सुनाइए। हाँ जी। एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट आपने बताया, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है जी, तो एक नेचुरल नेचर बनाना है। दूसरा बताया ब्लेम नहीं करना है, राइट, करेंगे तो और कोई भी करेंगे। जी, तीसरा कोई भी चीज हम करते हैं तो सेकंड थॉट, शंका नहीं लाना है, जी, नेगेटिव एनर्जी मतलब नेगेटिविटी नहीं लानी है, क्योंकि वो पॉइजन की तरह सुख को मतलब वो खत्म कर देता है, तो शंका नहीं लानी है। चौथा आपने बताया रिएक्ट, नॉट टू रिएक्ट, तो ये वास्तव में हमारा संस्कार नहीं है, मतलब कि हम रिएक्शन में आ जाए, तो धीरे धीरे उसके ऊपर भी थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए। तो रिमोट जो है वो दूसरे के हाथ में नहीं देना है। वो आपने एग्जाम्पल हीरो एक्टर का एग्जाम्पल देके आपने बताया। और जो 5th है वो बताया आपने कि नॉट टू रिजेक्ट, किसी को भी व्यक्ति पदार्थ मतलब खाने का पदार्थ हो या व्यक्ति हो, रिलेशन हो, किसी के साथ बनती है नहीं बनती ऐसा नहीं करने का, क्योंकि हम करेंगे तो सामने हमको भी वैसा ही मिलेगा। जी
बहुत अच्छा, आप अच्छे स्टूडेंट है। ओ बाबा, आपकी स्टूडेंट हूँ ना दीदी। और बाबा मदद करता है और आप जैसी माँ टीचर बन के हमको सिखाया। तो अच्छा, तो अभी नेक्स्ट स्टेप है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में रिलैक्सेशन आए, खुशी आए, सुख आए। उसके लिए 5 बातें हमें अडॉप्ट करनी है। उसमें सबसे पहली बात है लुक फॉरवर्ड। आजकल मानसिकता ये है कि पास्ट की बातों की इतनी चिंता करते हैं और पास्ट को चिंतन करने में ही प्रेजेंट टाइम वेस्ट जा रहा है, और फिर फ्यूचर की चिंता करते हैं तो हाथ में कुछ लगता ही नहीं है। तो वास्तव में क्या करना है, पास्ट इज पास्ट कर देना है, पास्ट का चिंतन नहीं करना है। लुक फॉरवर्ड, आगे देखो। देखो, कुदरत ने भी आंखें हमें सामने दी हैं, साइड में नहीं दी, पीछे नहीं दी। क्यों? लुक फॉरवर्ड, हमें आगे देखना है, आगे के लिए देखना है। आगे जो सक्सेसफुल लोग होकर के गए, वो क्या रीजन था कि वो सक्सेसफुल हुए? तो लुक फॉरवर्ड, हमें अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए लुक फॉरवर्ड एक पॉलिसी। फिर दूसरी बात है बी पॉजिटिव। गीता में कहा हुआ है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छे से अच्छा होगा। तो हर बात में अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमें अपने आप अच्छे विचार आएंगे, सब तरफ से अच्छे सहयोग मिलेगा और हमारे जीवन में बहुत सहज सफलता मिलेगी। तो अपने को सकारात्मक बनने की जरूरत है, पॉजिटिव बनने की जरूरत है। फिर तीसरी बात है गिव कोऑपरेशन। अब देखो, कुदरत ने हमें ये शरीर दिया है, ये शरीर कोऑपरेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको हम बॉडी कहते हैं, शरीर कहते हैं। अब ये शरीर समझो हमें भोजन करना है तो हाथ भी सहयोग करता, मुंह भी सहयोग करता, दांत भी सहयोग करता, जीभ भी सहयोग करता। अगर कोई भी रुक जाए तो काम अटक सकता है। तो जैसे ये बॉडी में कोऑपरेशन की कुदरत की करामत है, इसीलिए हम सुखी हैं। अगर हमें सुखी बनना है तो हमें कोऑपरेशन देना है। कहाँ कहाँ कोऑपरेशन देना है? देखो, फैमिली भी एक बॉडी है, इंस्टीट्यूशन भी एक बॉडी है, सोसाइटी भी एक बॉडी है, नेशन भी एक बॉडी है, और पूरी यूनिवर्स एक बॉडी है। तो हमें अपना बड़े दिल का सपोर्ट देना है, कोऑपरेशन देना है, सहयोग करना है। कहाँ भी कोई भी कार्य के अंदर सहयोग के लिए, देखो ये अंगुली है ना, बहुत अच्छी चीज है। अगर मैं किसी को दान नहीं कर सकती, लेकिन मुझे मालूम है कि ये दानवीर व्यक्ति हैं और मैं इशारा कर दूं कि आप उनके पास जाएंगे तो आपको सहयोग मिलेगा, तो ये अंगुली निर्देश करना भी सहयोग हुआ। फिर समझो कोई कार्य करना है, हम सभी साथ में बैठे हैं, पूछा जाता है कि ये काम किया जाए, तो उसमें अंगुली उठानी होती है, अपना सहयोग देना होता है कि यस करना चाहिए। फिर करने के बाद कौन करेंगे, ये भी बात आती है।
अगर हम कर सकते हैं तो हमें इमीडिएट हाथ ऊपर करके कहना चाहिए कि हाँ मैं करूंगी। यहाँ मुझे एक बात कहने को दिल हो जाती है। हमारी संस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ दादी प्रकाश मणि जी थी। उनके साथ मेरे को 21 दिन टूर करने को मिला था और उनको यज्ञ में सब दादी जी कहते थे। तो मैंने उनसे एक बार प्रश्न पूछा कि दादी जी आप दादी जी कैसे बने? तो बोला तुम क्या पूछ रही हो? मैंने कहा मैं सही पूछ रही हूँ, आप दादी जी कैसे बने? तो उन्होंने बताया कि देखो चंद्रिका, हम सब 350 भाई बहने संस्था की बिगिनिंग की स्थापना में थे और बाबा ब्रह्मा बाबा जब भी कोई कार्य करना होता था तो सभी को बिठाते थे और बिठा करके फिर पूछते थे कि ये काम करना है, कौन करेगा? तो मैं इमीडिएट हाथ खड़ा कर देती थी। मैं ये नहीं देखती थी कि दूसरे किसी ने किया कि नहीं किया, मेरे को आता है नहीं, मैं हाथ खड़ा कर देती थी। फिर मैं जाके बाबा से पूछती थी, मम्मा से पूछती थी, मुझे नहीं आता था तो मैं पूछती थी। तो इसी के कारण मेरा नंबर 1 आया। ब्रह्मा बाबा के बाद हमारी संस्था की चीफ दादी प्रकाश मणि जी बनी थी। लेकिन देखो एक अंगुली सहयोग, कोऑपरेशन, तो अंगुली उठाना, अंगुली देना, ये कोऑपरेशन है। तो हमें अपना नेचर सहयोग वाला बनाना चाहिए। तो तीसरी बात गिव कोऑपरेशन। चौथी बात है ये सारी चीज आप अपने जीवन में स्टार्ट करेंगे ना, उसके पहले आपके अंदर हैप्पीनेस आ जाएंगी। ये विचार मात्र ही आपको खुश कर देगा। चौथी बात है बिकम अ गुड डोनर। देखो पैसे का दान कर सकते हैं, पुस्तकों का दान कर सकते हैं, ब्लड का दान कर सकते हैं, शरीर के अंगों का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, ये सब कुछ दान कर सकते हैं। मैं इससे कोई बड़े दान की बात कर रही। बिकम अ गुड डोनर। देखो इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कोई उसको अंडरस्टैंड करे, उनको कोई समझने वाला हो, उसको कोई सपोर्ट करने वाला हो, उसके प्रति किसी की सिंपैथी हो, उसे कोई सहयोग देने वाला हो। जब ये वैल्यूज जीवन में होती हैं तो एक जीवन में कृतार्थता का भाव आता है। तो ऐसे हमें बड़े दिल वाला बनना है कि हम दूसरों को समझ सके। हम ये अपेक्षा न रखें कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे मदद करे, कोई करे तो मैं करूं। नहीं, मुझे अच्छे दाता बनना है क्योंकि भगवान दाता है और हम भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान के बच्चे तो भगवान की तरह देने वाले होने चाहिए। तो बिकम अ गुड डोनर। और 5वीं बात है बी मर्सीफुल। ऐसे दयालु बने जो हम दुश्मन को भी माफी दे सके। क्राइस्ट क्यों बन गए? जब उन्हें क्रॉस पर चढ़ाया गया तब कहते हैं भगवान उन बेचारों को मालूम नहीं है, उन्हें माफ कर देना। कितनी करुणा, कितनी दया, कितना क्षमा भाव। हम अपने जीवन में ऐसे मर्सीफुल बने। अगर ये 5 जीवन मूल्य जीवन में आ गए तो मैं गारंटी से कहती हूं आपके जैसा सुखी और आपके जैसा खुशनसीब इंसान इस संसार में कोई नहीं होगा।
तो ये 5 बातें भी याद रह गई होंगी। अभी मैं अंजलि बहन से रिपीट कराऊं? अंजलि बहन आप रिपीट करोगे? सुन रहे अंजलि बहन? यस 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 मैडम, आप रिपीट करेंगे 5 शब्द? यस जी। यस यस यस। मैंने बना भी लिया है। आपके डिस्कार्ड करने के N5 है और याद करने के B5 है जी। Number 1, be forward looking. Number 2, be positive. Number 3, be cooperative. Number 4, be a good donor. And lastly, be merciful. वेरी गुड। बहुत अच्छा। अभी ये 5 बातों को अपने जीवन में हमें धारण करनी है, उसकी मास्टर की अभी हमको लेनी है। वो मास्टर की क्या है? वो मास्टर की है आत्मचिंतन। मैं मुझे समझूं, मैं मुझे जानूं, मैं मुझे पहचानूं, मैं मुझे महसूस करूं, मैं मुझे एक्सप्लोर करूं। वो मैं कौन हूं? तो देखो, हम एक बात संसार में आज लोग भूले हुए हैं, जिससे बहुत दुखी हैं, वो है अपने को भूले हुए हैं। तो एक सत्य जो मैं कहना चाहती हूं, जिससे अभी जो मानसिकता बनी हुई है लोगों की, वो मानसिकता है कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट की मानसिकता। और ये भी एक पहलू है कि जिससे मनुष्य डिससेटिस्फाइड रहता है। वो अपने को दूसरों के साथ कंपेयर करेगा, कॉन्ट्रास्ट करेगा। मेरा मकान ऐसा, उसका मकान ऐसा, मेरी गाड़ी ऐसी, उसकी गाड़ी ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, उसका बेटा ऐसा, मेरी वाइफ ऐसी, उनकी वाइफ। अरे हर बात में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, और खुद को भी काउंटर एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगी दूसरों के साथ, जिसके कारण या तो वो अपने को दूसरों से थोड़ा भी सुपीरियर महसूस करेंगे ने, तो ईगो आ जाएगा। और ईगो तो पतन की जड़ है, अभिमान तो पतन की जड़ है। अगर दूसरे की भेंट में खुद को थोड़ा भी इंफीरियर देखेगा तो नर्वस हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। तो ये जो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की मानसिकता है, उसको खत्म करने के लिए एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। और वो यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी एक इंसान दूसरे जैसा नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति जैसा नाम, रूप, उम्र, विशेषता, आयुष्य, सब एकदम परफेक्ट दूसरे जैसा है, ये पॉसिबल है? नहीं है। तो मास्टर की ये है, मैं यूनिक हूं। इस दुनिया के अंदर बड़े गौरव के साथ अपने आप को ये रियलाइज कराना है कि मैं एक यूनिक व्यक्ति हूं, मैं एक यूनिक पर्सनालिटी हूं। मेरे जैसा इस समय दुनिया में कोई है नहीं, पास्ट में भी कोई नहीं था, फ्यूचर में भी कोई नहीं होगा। मैं हूं। मेरी आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी है। भगवान
के रजिस्टर में मेरा नाम अलग से लिखा हुआ है और मेरा काम भी अलग से लिखा हुआ है और वो मैं ही कर सकूंगी। मेरा काम मेरे अलावा कोई नहीं कर पाएगा और दूसरे का काम वो ही करेगा, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जैसे मैं यूनिक हूं, वैसे संसार की हर एक आत्मा यूनिक है। हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हम किसी को कंट्रास्ट नहीं कर सकते हैं। आज संसार में जो वैर है, विरोध है, कंपटीशन है, उसका कारण केवल ये है। इसी में विरोध होता, इसी में ईर्ष्या होती। तो परंतु ये तो परफेक्ट अज्ञान है, पूरा अज्ञान है। जब एक व्यक्ति दूसरे जैसी हो ही नहीं सकती है ही नहीं, तो आप कंपेयर कैसे करते हैं या आप कॉन्ट्रास्ट कैसे करते हैं? एक बार, ये भी हकीकत है, सत्य घटना है। एक माँ के 2 बेटे थे। एक पढ़ने में बहुत होशियार था और दूसरा थोड़ा कमजोर था। तो उसकी माँ ने बोला कि देखो, ये मोंटू फर्स्ट नंबर लेगा और तू फेल हो जाएगा। तुम पढ़ता नहीं हो, तुम फेल हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर ले लेगा। अच्छा, उस बच्चे ने सुन लिया और सुनते ही उसने मन में ये निश्चय किया कि अभी मुझे फेल होकर के ही दिखाना है। और परिणाम यही आया कि वे फेल हुआ। जब परिणाम आया, माँ ने पूछा तुमने ऐसे क्यों किया? बोला माँ, तुमने बोला था ने कि तुम फेल होने वाला हो, तो मैं फेल हो गया। हमारे बोल श्राप भी बन सकते हैं, हमारे बोल आशीर्वाद भी बन सकते हैं। तो इसीलिए मास्टर की है, मैं आत्मा हूं, यूनिक व्यक्तित्व है मेरा और मैं अपने आप को पहचानूं। अब आत्मा का जो परिचय है, शरीर का तो हमको मालूम है। आधार कार्ड में फोटो आ जाता है, बर्थ डेट आ जाती है, सब आ जाता है। कहाँ पैदा हुए, कहाँ मरे वो नहीं आएगा, कहाँ पैदा हुए आ गया, वो आ जाता है। ये आत्मा की आइडेंटिटी कौन बता सकता है? ये ब्रह्मा कुमारी इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में परमात्मा परम शिक्षक के रूप में हमें ये आत्मा का एजुकेशन देते हैं। और जिस आत्मा के एजुकेशन से हमें 3 बातों की गारंटी है। नंबर 1, मैं देवता हूं, मुझे देवता बनना है। नंबर 2, इस धरती पर स्वर्ग लाना है और उस स्वर्ग लाने के लिए मुझे अपने आप को सहयोगी बनाना है। तीसरी बात, परमात्मा धरती पर आया है, वो कालों का काल महाकाल है और इसीलिए सारे संसार से दुख, अशांति, कलह, कलेश सब खत्म होने वाला ही है। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है और उसके अंदर मैं हीरो एक्टर हूं। मैं हीरो एक्टर। अपनी आइडेंटिटी को हमेशा याद रखना है, मैं कौन, और यही खुशी का सबसे बड़ा आधार है। और मैं कौन हूं उसके बाद मैं किसकी हूं,
आत्माओं का पिता परमात्मा है और मैं परमात्मा की संतान हूं। उससे बड़ा सत्य संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। तो भगवान जिसका सब कुछ हो, माता पिता गुरु बंधु स्वामी सखा मित्र, परमात्मा जिसका सब कुछ हो, जिनको भगवान मिल जाए, सुखों का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, उन्हें बाकी क्या रहेगा। मैं एक सत्य घटना और सुनाना चाहती हूँ। एक बार मेरे ऊपर अमेरिका से फोन आया और उन्होंने कहा कि सिस्टर, आई एम कमिंग टू इंडिया एंड आई वांट्स टू स्टे फॉर 2 days विथ यू, विल यू अलाउ मी। हमने कहा नो प्रॉब्लम, आइए। आप कौन हो, अपना परिचय दीजिए। तो फिर उन्होंने परिचय दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं माउंट आबू जा करके और फिर आपके पास आऊंगी। वो माउंट आबू जा करके फिर 2 दिन मेरे पास रहने लिए आए। अब उस बहन को किसी ने कहा था, उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई थी कि वो सुसाइड करने जाने वाली थी, मरने वाली थी। तो किसी वेल विशर ने कहा कि आप मरने के पहले 2 काम करो, मरो भले पर मरने के पहले 2 काम करो। एक, आप माउंट आबू में जाकर के ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन देखो और वहां लाभ लो। और दूसरा, आप अहमदाबाद में एक चंद्रिका बहन है, वहां जाके उनसे मिलो। जिन्होंने ये कहा था वो मुझे अच्छी तरह से जानते थे, तो उनसे आप मिलो। उसके बाद फिर जो करना हो सो करो। वो माउंट आबू जाकर के आए, अहमदाबाद आए, मुझे मिले। तो उनको हमने एक कमरा दिया कि आप इस कमरे में सो जाएंगे, ये आपका कमरा है। तो सोने का जब टाइम आया तो उसने कहा कि सिस्टर, आई वांट टू स्लीप इन योर रूम, मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। अच्छा, मैंने कहा नो प्रॉब्लम। हमने एक खटिया डलवा दिया। फिर दूसरा दिन सुबह हुआ तो मैं उनको अहमदाबाद घुमाने आदि का प्रोग्राम बनाने के लिए बोला। तो बोला नहीं, मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ और मुझे आपका 1 घंटे का टाइम चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ले लीजिए जब चाहिए। तो वो मेरे सामने टेप रिकॉर्डर लेकर के बैठे। वो ये काफी करीब 25-27 साल पहले की बात है। वो टेप रिकॉर्डर लेके मेरे सामने बैठे। तो बोला मुझे रिकॉर्डिंग करने देना। मैंने कहा कर लो, कोई बात नहीं। उसने मेरे को एक प्रश्न पूछा कि ड्यूरिंग द डे आई सॉ दैट यू आर very happy, very happy, very happy. But how it is possible that the same laugh and same happiness was in your sleeping stage? जब आप सोए हुए थे तो भी आपके चेहरे पर इतनी खुशी थी, इतना हास्य था, वो कैसे पॉसिबल हुआ? तब मुझे मालूम चल गया कि ये मेरे साथ सोना क्यों चाहते थे। उन्होंने रात को मुझे ऑब्जर्व किया होगा। मेरे पास जवाब था। मैंने कहा डियर सिस्टर, संसार का जो अंतिम सत्य है, द हाईएस्ट ऑथोरिटी है, द फाइनल पावर है परमात्मा, मुझे वो मिल गया है। मैं उनके साथ रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, सब कुछ उसके साथ करती हूँ। सो आई एम ऑलवेज हैप्पी। और सचमुच मैं ये अनुभव करती हूँ कि मेरे जैसा सुखी और मेरे जैसा खुश नसीब कौन होगा संसार में। लेकिन मैं ये जवाबदारी मेरी समझती हूँ कि मुझे सबको मेरे जैसा खुश नसीब बनाना है और मुझे सबको मेरे जैसा सुखी बनाना है। तो
जब हम भगवान के बच्चे हैं, ये अपने को रियलाइज हो जाएगा, तो परमात्मा के संतान को सुख की क्या कमी हो सकती है। तो यही आत्मचिंतन मास्टर की टू हैप्पीनेस है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में कहाँ भी ब्रह्मा कुमारी के कोई भी ब्रांच में जाकर के इस स्पिरिचुअल एजुकेशन को लेंगे तो ये गारंटी है कि ये सुख, शांति, खुशी, पवित्रता ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपको मिल ही जाएगा। और ये सारी शिक्षा फ्री में दी जाती है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सबको मास्टर की मिल गई है, वो है आत्मचिंतन। ओम शांति। ओम शांति। अगर आप अलाउ करें तो हम 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। फाल्गुनी बहन। जी दीदी जरूर करवाइए। यस यस, ये दीदी आप, हम कर सकते हैं दीदी। जी जी। आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है। हम आज आत्मा के स्वधर्म में स्थित हो जाएंगी। अगर जीवन में शांति है तो बाकी सब चीजें अपने आप चली आएगी। तो आप सभी एकदम रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं और अपना टोटल फोकस मस्तिष्क में, 2 भ्रमर के बीच में जहां आत्मा रहती है, अपना टोटल फोकस भ्रुकुटी में कीजिए। और बस मैं जो यहाँ से आपको कमेंट्री दे रही हूँ उसी को महसूस करना, उसी को रियलाइज। ओम शांति। मैं एक दिव्य चेतना हूँ। ज्योतिर्मय बिंदु हूँ। मैं आत्मा मस्तिष्क सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप। शांति मेरी अपनी वास्तविकता है।
शांति। मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति। शांति मुझे बहुत प्रिय है। शांति मुझे बहुत प्रिय है। मैं आत्मा शांति के सागर प्रभु पिता की संतान शांति का अवतार शांति का फरिश्ता शांति दूत शांति के सागर से प्राप्त शांति मुझ आत्मा के द्वारा मेरे आसपास वालों को, मेरे शहर वालों को, मेरे देशवासियों को, पूरे विश्व को प्राप्त हो रही है। ये शांति के प्रकंपन दूर दूर तक पहुंच रहे हैं। मैं मंगल कामना करती हूँ विश्व की सर्व आत्माओं सुख, शांति, खुशी, आनंद प्राप्त हो। विश्व में शांति हो, विश्व कल्याण। ओम शांति शांति शांति। ओम थैंक यू दीदी जी। हमारा सौभाग्य है कि आज ईश्वर ने हमें ये सौभाग्य प्राप्त कराया। मैं अंजलि बहन से रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी अपना भाव रखें
है ना। बहुत थैंक्स तो करे दीदी, लेकिन साथ में जो आप अभी इमोशनल, वो मैंने भी महसूस किया कि आपने वो टच पाया। हरित भाई, मैं तो बोलती हूँ कि आपने भी वो टच पाया है, तो आप भी अपना भाव एक्सप्रेस करें, फिर हम फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स ग्रहण करेंगे, है ना। तो आप दोनों अपना भाव रख सकते हैं, क्योंकि ये मोमेंट वंडरफुल है, फिर से ये मोमेंट नहीं आएगी, है ना। तो आप जरूर अपना भाव एक्सप्रेस कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। We are really grateful to दीदी for a wonderful session. आप हमारे लिए ईश्वर बन के आए हैं। हम हमारी सीए की लैंग्वेज में हमें जैसे याद रहता है, वैसे मैंने थोड़े नोट्स बनाए हैं। डिस्कार्ड करो N5 को और एडॉप्ट करो B5 को। N5 क्या है? नो एक्सपेक्टेशंस, no blaming others, no negativity, not to react, not to reject. तो adopt क्या करना है? B5, be forward looking, be positive, be cooperative like our body and universe, be a good donor, be merciful. मास्टर कीज क्या है? तो उसमें भी M5 है, जिसमें मुझे खुद को, अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को कैसे पहचानूं। वो M5 से मुझे आगे मास्टर की मिलती है, कंपैरिजन नहीं करना, खुद की एक अलग आइडेंटिटी बनानी है, खुद की एक अलग पहचान बनानी है। और आपके लिए मैंने सुंदर 4 लाइनें लिखी है। सारा जहां उसका होता है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी उसी की है जो समा जलाना जानता है, हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। दीदी जी, आप हमारे लिए ईश्वर बन के आए हो। ओम शांति। ओवर टू यू चेयरमैन फॉर योर वर्ड्स। नहीं, मैं आई थिंक अंजलि बहन ने सब कुछ बोल दिया। आई थिंक जो मेरे वर्ड्स है वो भी उन्होंने बोल दिए। मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग में खुद भी सुनने वाला हूँ और सबको देने वाला हूँ, बिकॉज बहुत बहुत अच्छी चीजें आपने बोली है। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज जो आपने बोली है, आई थिंक जो एक आपने बोला था कि आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, नो एक्सपेक्टेशन, दैट इज व्हाट आई रियली वुड टेक इट फॉरवर्ड। आप उसके बजाय एक्सेप्टेंस करो, दैट इज परहैप्स द बिगेस्ट लेसन दैट आई विल टेक फ्रॉम दिस। बाकी जो सब अंजलि बहन ने बोला वो बहुत एकदम सही, सब कुछ जस्टिफाई उन्होंने समराइज कर दिया। बट थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस, हम लोग बहुत आभारी हैं, हम बहुत, वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू विद अस टुडे। एंड थैंक यू टू फाल्गुनी बहन कि आपने हमें इंट्रोड्यूस किया और इनको आप ऐसे सेशन में लेके आए। थैंक यू अच्छा, चंद्रिका। हरित भाई, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगी, परमिशन दे तो अंजलि बहन? यस मैम। हाँ जी। यस फाल्गुनी बहन। हाँ, मुझे ये भी बहुत बताते खुशी हो रही है कि चंद्रिका दीदी के साथ उनके ही 2 लौकिक सिस्टर, यानी एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन, दोनों इस कार्य में सेवा में समर्पित हैं। बड़ी बहन जी है वो दीदी जी अभी अफ्रीका में है, सेवाएं दे रही हैं, और छोटी दीदी जो है वो उनके साथ ही वहाँ महादेव नगर सेंटर पर सेवाएं दे रही हैं। तो मतलब ऐसे पेरेंट्स के बच्चे जो 3-3 बच्चे अभी सेवा में समर्पित हैं। और दूसरी चीज बताऊं तो अपने सीए के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड हम मेंबर्स के लिए टाइम मैनेजमेंट का अगर एक सेशन रखेंगे तो इट विल बी वेरी वंडरफुल, क्योंकि दीदी जी का जो मेन जो कहते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट से ही और परमात्मा प्यार, ये दोनों ब्लेंडिंग कैसे करके अपने आप को एक बैलेंस रखना है, खुश रखना है, तो टाइम मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा, एक स्टूडेंट की तरह वो मेंटेन करते हैं। तो ये बहुत सुंदर हमको बेनिफिट मिल सकता है। और एक तीसरा और लास्ट वाला, मैं मेरा एक भाव रखना चाहती हूँ कि मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, वहाँ रे मेरी खुशनसीबी, मेरी बिटिया, जो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। जब वो एक एंजेलिक फॉर्म में थी, यानी कि 7 साल की थी, तभी ये दीदी जी ने, शुरू की बात है, जो भगवान का परिचय उन्होंने कराया तब की बात, तो वो बिटिया को अपने जो एक श्रृंगारित किया था, एक प्रोग्राम था, उसमें मुगट पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, ऐसा एक अलग अलग प्रोग्राम में ऐसा कुछ होता है कभी। तो दीदी जी ने जो पहना था, 2000 लोग थे, और उन्होंने, बिटिया ने उनके सामने एक डांस किया,
और उन्होंने वो बिटिया को पहनाया, गोदी में लिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो घड़ी एक माँ के लिए क्या होती है। और मैं धार आंसू मेरे में से बह रहा है कि वहाँ रे मेरा भाग्य, वहाँ रे ये बिटिया का भाग्य। तो ऐसी दीदी जी को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले का कि उन्होंने मुझे इतना सौभाग्य दिया। और ऐसे भाई बहने मीठे जो तुरंत ही कि नहीं बहन हमको करना है प्रोग्राम। तो देखिए कितना मतलब एक स्वमान रिस्पेक्ट देना। तो हरित भाई, अंजलि बहन और आप सभी चारों टीम मेंबर्स, बिशन भाई एंड सुनील भाई, जिनके साथ रेगुलर थोड़ी बहुत बातें होती है, उन चारों मेंबर्स को बहुत बहुत थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया। अंजलि बहन आप अपना वोट ऑफ थैंक्स। आप अहमदाबाद में हैं, आप सभी को बाबा के घर में आने का निमंत्रण है। नहीं जरूर जरूर पक्का जरूर ले जाएंगे, जाना ही है। हाँ अंजलि बहन आप बस वो एक कहते हैं ना लीडरशिप, तो उसमें भी लीडरशिप ले लीजिए, सबको साथ रखने का और ले जाने का, है ना। हम जरूर दीदी जी को मिलने वहाँ गेट टुगेदर करेंगे, ठीक है। पक्का पक्का, यस यस, जैसे थिंग्स नॉर्मल होती है मैडम, हम आपसे पहले मिलने आएंगे। On behalf of Ahmedabad branch of ICI, we are really grateful, we are honorable, we are privileged to have you with us. Thank you so much. Falguni Ben, thank you for coordinating the whole session. We'll soon have the time management session as well. Thank you all participants. We'll see you tomorrow with another good topic, another faculty. We request you to give your support and overwhelming participation as you usually give. Thank you to all of you. Once again, Om Shanti to all of you. Thank you. Thank you. Om Shanti. Thank you.